जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें मंजिलें खुद ढूंढ लेती हैं। मेहनत और हौसले जिनके होते हैं उन्हें मंजिलें खुद ब खुद मिल जाती हैं। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए सिर्फ हौसला चाहिए, जुस्तजू चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, इल्म हासिल करने के लिए भी हमें जुस्तजू और हौसला चाहिए। आज तालीम हासिल करने के लिए अखराजात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास हौसले होते हैं, जुस्तजू होती है, उन्हें मंजिलें खुद ढूंढ लेती हैं। इन्हें पैसे के लिए कभी पीछे होने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा ही एक वाक़या नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के एक मस्जिद के मौज़न साहब के पास के दो लड़कों का है, जो आज एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत जुस्तजू से इतनी अच्छी तालीम हासिल की है कि इन्हें फ्री सीट हासिल हुई है। हालांकि इनके वालिदैन के माली हालात इतनी अच्छी नहीं हैं, फिर भी इनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हुए फ्री सीट हासिल करने में कामयाब हो गए। माँ बाप की जो भी खर्च आया इन पर सियासत और फैज़ आम ने पूरा कर दिया। आज हमारे स्टूडियो में मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन आए हुए हैं, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तालीम, अपने घर के हालात और किस तरह अपने अज़ाइम को पूरा किया है और आगे करने वाले हैं, इससे हमें वाकिफ़ करवाया, जो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी तालिब इल्म अपने हौसले पस्त ना करें, बल्कि मेहनत और जुस्तजू से आगे बढ़ता रहे। मंजिलें खुद आप तक पहुंचती रहेगी। पेश है इस खुसूस में मुशर्रफ हुसैन के ख्यालात, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी तालीम और अपने इन्वेंशन से हमें वाकिफ़ करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। I am Mohammad Musharraf Hussain. I am pursuing aeronautical engineering. Now presently I am in 3rd year. So I belong from a very poor family which is situated in Nalgonda district. So since from childhood, me and my brother has only one aspiration he wants to become a neurologist and I want to become an aeronautical engineer. So since from childhood we have a dream, but financially we are very weak. My father couldn't support us to take us to the next level. He is a Mausan and my mother is a sari weaver. So my father usually get only 4,000 per month. So he thought that it won't fit to let them achieve their dreams. So we thought, let's see, money is just it's an exchanger. So we thought, let's keep money aside, let's work hard to our dreams, because once you dream you can achieve it. So what we thought, we studied very well. My elder brother scored 97% in his 10th standard and I scored 87% in my 10th standard. After that he moved to the BPC, then I moved to the MPC. Then after writing MSET and after a lot of struggles, he wrote NEET exams, and after that he got a seat in medicine. Then after MSET exam I moved into the aeronautical. So I scored 17,000 marks in MSET exam, and then I got a seat in Institute of Aeronautical Engineering. Then after that, from here onwards, my life has changed, because I got a free seat in aeronautical engineering, and my brother also got a free government seat. So what we thought, let's approach the people of Telangana, of Hyderabad, trust peoples. Then we met Siyasat paper and Faizam. Both the trust helped a lot in our journey. They supported financially fit for us. Then after that, what we have done, my brother got a US opportunity last year, and I too got a US opportunity in 2021. I was in 2nd year. So there is a Society of Automatic Engineering in Florida. They very liked of my project. They told me to come, but due to financially not good, so I dropped that opportunity. Then what happened, there is a magic. What I believe is that once if you have a dream, universe will conspire to achieve it. So what I have done, I got an idea, let's make a hybrid aerial vehicle, which is a combination of helicopter and aircraft. It will take off in a helicopter and it will move in a aircraft way. So it will be very helpful for the society and it will be helpful for the Indian people. So that hybrid aerial vehicle can be used for defense system, agriculture system, and for the payload delivery. In defense system, it could be used for carrying missiles, and in agriculture it could be helpful for spreading the pesticide in agriculture fields, and for payload delivery and logistics. Payload delivery will be helpful to carry products for Amazon, Flipkart, and all other e-commerce companies. And for mostly medicines for the rural areas, we say there is no proper medicines will be available, so that my drone can help them to give that medicine to the poor people.
And let's come back to the struggling of my story, how I struggled. When I was in 8th standard, my father told me that nothing is impossible in life. After that in 9th standard, my English tutor told me that there is possible and impossible. In impossible there is IMPOSSIBLE. If we differentiate them, I am possible. So then I thought, let's start working hard. And then I said that let's achieve our dreams. So because no environment is not supporting us to study. Our home was very bad. We are financially not good. The only good thing is hope. We call it उम्मीद. कभी बोलते लोग उम्मीद नहीं छोड़ना लाइफ में. अगर उम्मीद है तो आप है. तो हमारे होप एक ही चीज़ थी भाई हमारे कने, और कुछ भी नहीं था. उम्मीद तो एक ही चीज़ थी हमारे पास के अचीव करना. बिकॉज हमारे ग्रैंडफादर्स उल्लाबीपुर थे, तो हम लोग पायोनियर्स बन सकते हैं. लाइक वी आर द स्टार्टिंग. तो हम लोग क्या करें, मेहनत करें. वी यूज्ड टू स्टडी 18 hours in a day when we were in 11th standard. मी एंड माई ब्रदर स्कूल से आते कि दोस्तों के जैसा क्रिकेट खेल. अपन को मालूम था अगर हम लोग इसमें टाइम दिए तो अपन अचीव नहीं कर सकते. एक ही चीज़ थी कि हम लोग आते थे, पढ़ते थे, फिर सुबह होती थी, रात होती थी, फिर सुबह, फिर रात, ऐसी होती थी. तो फिर हम लोग क्या करें, हम पढ़ते गए, फिर हम लोग क्या करें, फिर देखो एक एनवायरनमेंट सपोर्ट कर लेते गया. फिर 11th में आया. मैं 11th में आते कि मेरे को फर्स्ट ईयर में 440 मार्क्स है आउट ऑफ 470. फिर मेरे भैया को 432 है 440. तो हम लोग कह रहे दिस इज़ द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ. 440 आउट ऑफ 470. माई ब्रदर गॉट 432 आउट ऑफ 440 बाई पी सी. सो हम लोग क्या बोला, दिस इज़ द फर्स्ट अचीवमेंट. अगर देखो एक चेन बन रही है, अचीवमेंट्स की चेन बन रही, तो हम लोग क्या करें, एक होप, फिर उम्मीद जगी कुछ हो सकता बोल के. फिर हम लोग क्या करें 12th में, फिर हमारे भैया को 972 है, मेरे को 905 है. आई गॉट 91%, ही गॉट 97%. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कोचिंग सेंटर्स में गए तो हम लोग क्या ज़्यादा फीस बोल रहे थे 90,000. फ़र्क है. एक नीट के वास्ते कोचिंग, एमसेट के वास्ते 30,000 बोल रहे थे. तो हम लोग जब हमारे पास स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, यूट्यूब पे देख के पढ़ लेने के रिसोर्स भी इतने नहीं थे, तो हम लोग क्या करें, सियासत को है. हमारे वालिद साहब के एक फ्रेंड थे, उन्होंने क्या करे हमारे को उनके थ्रू सियासत को लाए. सियासत में इल्म सर लाए. फिर इसके बाद हम ना ज़हीर साहब से मीट हुए. ज़हीर साहब हमारे को गाइड करे. ज़हीर साहब बोले मनी इज़ जस्ट ए सेकेंडरी थिंग, योर एफर्ट्स कैन टेक यू टू योर अचीवमेंट्स. एफर्ट्स आर ओनली थिंग विच यू कैन हैव. हमारे को भाई सिर्फ एक ही चीज़ थी, नॉलेज. हम लोग कौन सी भी जगह तो मिनट्स में ग्रैप कर लेते थे. तो वो एक ही तो हमारे में पावर थी, वो भी मैजिक हम लोग कर सकते थे. तो हम लोग क्या करें, ज़हीर साहब से मीट कर. तो ज़हीर साहब फर्स्ट ईयर में हमारे भैया को बोले कि जाओ बेटा कोचिंग ले लो. तो हमारे भैया कोचिंग ले लिए, फोकस इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले लिए. फिर उनको स्पैन ऑफ 6 to 8 months में उनको मेडिकल में सीट आ गई, फ्री सीट. नीट में उन्होंने 507 मार्क्स स्कोर करे थे आउट ऑफ 720. तो उनको नीट में सीट आ गई. ही गॉट ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो भी हमारे घर के पास ही, नॉट इन हैदराबाद, नॉट इन अदर प्लेसेस लाइक वरंगल. हम घर के पास ही 2 किलोमीटर के रेडियस में उनको सीट आ गई. सीट आने के बाद भी एक प्रॉब्लम, अगर हैदराबाद में आ गई तो फिर रूम रहने करने ही ज़्यादा खर्चे हो जाते थे. फिर तो हमारे भैया क्या करें, गांधी में भी सीट आ रही थी उनको, नलगुंडा में भी सीट आ रही थी. तो हमारे भैया क्या करें, नलगुंडे में चलिए घर के पास रहेगा, अच्छा पढ़ लेंगे बोल के. तो फिर इसके बाद माई एमसेट क्रैक करा 2020 में. फिर आई गॉट 17,000 रैंक. फर्स्ट फेस में मेरे को एरोनॉटिकल में सीट मिल गई. बिकॉज बचपन से एक ही क्या बोलते स्ट्रगल करा मैं, एरोनॉटिकल ज़बान पे सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी, एरोनॉटिकल. बिकॉज एरोनॉटिकल क्यों सोचता था, एरोनॉटिकल में क्या है, मतलब मैं बचपन से फ्लाइंग मशीन्स कैसा फ्लाई करते, व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट. साइंस क्या थी, होता कैसा था, रॉकेट्स दूसरे प्लैनेट्स पे जाते कैसा थे, इससे इन्फॉर्मेशन कैसा गैदर करते थे, उसके बीच में इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या थी, इसके जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों के दिमाग कैसा चलते थे. और मैं कैसा भी बचपन से वो लेवल पे जाने की कोशिश करता था कि मैं बचपन में क्या करता था, ऐसी पेपर से रॉकेट्स,
प्लेन्स बनाते देखता था, उसके मैं क्या करता था, उसका मोशन देखता था मैं। वो अगर जब कोई विंड आती थी वो टर्न कैसा करता था, व्हाट साइंस बिहाइंड इट, अगर अपन कोई चीज़ मोटर्स वोटर्स लगा दिए इसके बाद उसका रोल क्या रहता था उसमें। तो इससे मैं क्या करा, पूरे इनसाइट्स गैदर कर लेते गया, मतलब एक चेन बना लेते गया। हाँ, जिससे इससे ये होता, हाँ ब्लेड से प्रोपेलर्स ऐसा फिरते, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा फिरते, क्लॉकवाइज ऐसा डायरेक्शन में फिरते, अगर मोटर के अपन कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए तो इससे क्या हुआ, मेरे को लव, पैशन मेरे को मेरे को दिमाग बोल रहा था कि तुम इसलिए फिट है, तुम इसके वास्ते फिट है कि तुम इसके लिए ही बने लाइफ में, तो तुम्हारे को सिर्फ यही करना है, तुम्हारे को सिर्फ यही करना है मुशर्रफ बोल के मेरे को दिमाग में इंट्यूशन बोल के आता था, अंदर की आवाज़ बोलते ना, इनर वॉइस बोलते थे हम लोग, इनर वॉइस आता था। तो मैं क्या करा, फिर एरोनॉटिकल में आ गया, आई गॉट 17,000 रैंक इन एमसेट। फिर उसके बाद मैं क्या करा, ज़हीर साहब से मीट करा, ज़हीर साहब को बोला कि सर मैं ऐसा ऐसा अचीवमेंट्स करा, ऐसा अचीवमेंट तो सर क्या करे, ओ दैट्स अ गुड थिंग। सो सर क्या करे, मेरे को फैज़-ए-आम ट्रस्ट से मिला है बोलना, फिर मेरे को वहाँ रूम में रहने के वास्ते, फिर कॉलेज की फ़ीस, इसके वास्ते ना हेल्प करे। फिर यहाँ मेरा एक लेवल 1 था, अली अच्छी एमसेट रैंक करना, एरोनॉटिकल में जाना, एक लेवल 1 था। लेवल 2 कब स्टार्ट हुआ मेरे कॉलेज में, जब मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल उल्ला मेरे को इंकरेज करे, उल्ला इंकरेज करे कि एरोनॉटिकल एक ऐसी फील्ड है जो कम लोग लेते दुनिया में, ओनली आउट ऑफ 100 ओनली 5% विल चूज़ इट। तो तुम क्या करो, तुम इसमें रिसर्च करना स्टार्ट करो, हाउ वी कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट, हाउ वी कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हम ना कैसे कैसे मशीन्स ला सकते हैं और दुनिया में। बिकॉज यू आर द इंजीनियर्स की तो सिर्फ एक ही काबिलियत रहेगी, देयर इज़ नो टाइप ऑफ कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल, कोई इंजीनियर है, इंजीनियर का सिर्फ एक ही काम है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप दुनिया में आके, इंजीनियर का काम सिर्फ वही एक ही रहता। आप कोई कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते, आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग, ये कोई मैंने नहीं करता, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करा, रिसर्च, छोटे जब से रिसर्च करना बहुत पसंद था, तो मैं क्या करा, इसमें रिसर्च करना स्टार्ट करा। तो रिसर्च करते करते क्या हुआ, नॉलेज जो थी मेरी कंपाउंड हो गई, कंपाउंड मतलब चेंज हो गई, अब 1x से 4x हो गई, 4x से 8x हो गई, तो ऐसा डबल होते गई। मेरे को चीज़ें पूरे सिंपल दिखने लगे, जो बाकी के बच्चों को हार्ड दिखते थे, क्योंकि उन लोग बचपन से क्या थे, उन लोग को पैशन था, उन लोग सिर्फ माँ बाप से ढकलने से आ जाते थे, बट मेरे को क्या था, इंटरेस्ट था, पैशन था। तो मैं क्या करा, मेरे को चीज़ें पूरे हल्के दिखते थे, तो मैं क्या बोला, मेरे प्रोफेसर्स को बोला, सर ये बहुत छोटे चीज़ें हैं सर, इसमें हाई लेवल नहीं है क्या वॉल्यूम्स बुक्स, जो अपने साइंटिस्टां पढ़ते थे, आइंस्टीन, इसैक न्यूटन, इल्ला कैसे बुक्स पढ़ते थे, इल्ला का दिमाग कैसा, उल्ला का रगा कैसा खुलते थे। तो मैं क्या करा, लाइब्रेरी से गया और मोटे मोटे बुका निकाला, रात तमाम उसमें देखता था, मैं उसमें कंटेंट निकालता था, वो कंटेंट फिर मैं इधर कनेक्ट करता था मेरे रिसर्च पेपर में। तो मैं क्या करा, रिसर्च पेपर हम पब्लिश कर लेते गया सर के गाइडेंस के अंदर। मेरे मेंटर्स द्विवेदी सर बोल के मेरे एक मेंटर थे, और मारुति पांडियन सर बोल के मेरे मेंबर थे, और मेरे अश्लेषा मैम बोल के मेंटर थे। इन लोगों के से मैं क्या करा, रिसर्च पेपर लिख लेते गया, पब्लिश करते गया। फिर एक दिन प्रिंसिपल सर से मिला, मैं प्रिंसिपल सर को बोला, तो प्रिंसिपल सर क्या बोले, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, no, you are the hero of aeronautical of the future. So now I'm in third year, second semester. So after graduation of fourth year, I would like to pursue masters from Cranfield University, which is in UK. तो मैं वहाँ से मास्टर्स करना चाह रहा हूँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स में, बिकॉज वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, और वहाँ पे क्या है, हाई लेवल साइंटिस्ट है एरोनॉटिकल के। तो उन लोगों के साथ मैं कोलैबोरेट होके दुनिया में और अच्छे मशीन्स और एफिशिएंट मशीन्स दुनिया को चेंज कर सकते हैं, मेरे में मानता हूँ मैं, बिकॉज मेरे में एबिलिटी है वो। और जब मैं मास्टर्स करूँगा तो जब मेरे को जॉब मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर 4 to 5 years डेफिनेटली मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जो पैशन के पीछे, जो पैशन को ज़्यादा सपोर्ट, जो गरीब बच्चे रहते हैदराबाद के, जो मैं देखा हुआ ज़्यादा बच्चे क्या है भटके हुए रहते, मुश्किल लोग क्या है, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, उन लोगों को पैशन मालूम है क्या मतलब डिमोटिवेट कर देते लोग, क्योंकि उन लोगों को बोलते हैं कि तो अचीव नहीं कर सकता, जो सपने देख न को, तो उन लोग क्या बोलते, सपने खाली देखे जाते, एम्बिशंस क्या है अचीव करे जाते। तो मैं उन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मेरे जॉब लगे बाद उन लोगों को फाइनेंशियली जो भी हो सकता है मेरी तरफ से, जैसा मेरे को फैज़-ए-आम सियासत कैसा हेल्प करे, मैं भी उन लोगों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है,
मैं पैसों को क्या कहाँ कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। मैं पता है लोगों के दिमाग, लोगों के जो नॉलेज बच्चे गेन करना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। बिकॉज मनी इज़ जस्ट ए स्टोरिंग ऑफ वैल्यू और एक्सचेंजिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर आइटम, दैट्स इट। मनी कैन जस्ट हैव ए मोर परमानेंट इन लाइफ। खाली मैं एक ही चीज़ मानता हूँ भाई, नॉलेज तो पावर है। आप नॉलेज से हर चीज़ कर सकते हैं। आप नॉलेज से को ख़रीद सकते हैं, को बिका सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉलेज को ज़्यादा सपोर्ट करो। फाइनेंशियल तो एनवायरनमेंट कर देता भाई, दुनिया बनी एक को सपोर्ट करके तो दुनिया चलती रहती। तो वैसा क्या है, फाइनेंस के पैसों को क्या है, आप जितना आप अगर पढ़ सकते हैं मैं दे देता हूँ। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एम्बिशंस। अगर कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, आप अचीव कर सकते। सिर्फ ओनली चीज़ है कि आप कभी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना। होप इज़ लाइक ए ड्रग, यू मस्ट गेट एडिक्टेड टू इट। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लाइक हाउ दिस पीपल, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, इन लोग थे, इन लोग एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बने दुनिया में। वैसा मैं भी क्या करना, एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाना चाह रहा हूँ जो क्या है दुनिया को चेंज कर सके, दुनिया की मेंटालिटी को चेंज करे, लोगों के क्या है पर्सपेक्टिव को चेंज करे। तो मैं भी क्या है एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाना चाह रहा हूँ दुनिया में आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मास्टर्स करे बाद। वैसा मैं क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके, क्या है दुनिया एक बेटर प्लेस बना सकता हूँ कि लिविंग के लिए। मोस्टली इंजीनियर्स देखते रहते हैं हम लोग, उन लोग ग्रेजुएशन के बाद खाली बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस और ज़्यादा उन लोग अपनी एबिलिटी को नहीं समझते, कैपेबिलिटी को नहीं समझते। उन लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है दूसरे लोग तोड़ देते। तो इससे क्या होता, आदमी भटक जाता। तो मैं मोस्टली ये जानना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्वर से, और अगर उन अपने आप का एक प्रॉब्लम देख लिया उन क्या क्या कर सकते, तो उन क्या है बहुत कुछ कर सकते दुनिया में। पहले उन अपने आप को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर उन अपने आप को समझ गए तो उन दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ।